Hello everyone, myself Dr. Omkar Sangeeta Dilipra Sonone, a faculty at Team AFMG, and I am glad and euphoric to welcome on board three of our successful graduates who have now become doctors, Dr. Subhanshu, Dr. Sohil, and Dr. Abhishek. Welcome on board. I'm pretty glad and pleased to welcome you on this side of the fence now. First of all, I would like you all to introduce yourselves and also mention the university from which you have been graduated from. Let's go with ladies first, Dr. Sohail. Hello, myself, Dr. Sohil Srivastav. I can proudly say now I'm doctor. I did my MBBS from Tuve State Medical University. Dr. Subhanshu. Sir, myself, Dr. Shubhanshu Bhatt. I am from Tuve State Medical University, 2018 batch. Great. And Dr. Abhishek. Myself, Dr. Abhishek, sir, from Tiveri State Medical University, and I passed in 2024 July. And Great. this Thank you so much. So, first thing I would like to know from all of you, obviously, like what was the feeling once you got your result? तो obviously घर वालों का या फिर आसपास का क्या माहौल था? What was the emotions? क्या, if you can just put it into words. First, Dr. Abhishek. सर बहुत ही अलग ये था। इमोशन आ गया था, मैं तो रो ही दिया था। घर वाले मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। लाइक उन्हीं का एफर्ट था जो मैं डॉक्टर बन पाया, और हमारे टीचर सबका ये था। और सब लोग बहुत थैंक्स थे कि मैं एफएमजी ज्वाइन किया था, और आप लोग बहुत हेल्पिंग, मतलब बहुत हेल्प किए थे हमें। Great, great, great. Dr. Sohil. So everyone was so shocked. Even I was so shocked कि मैं पास हो गई, कि मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी अपने रिजल्ट्स को लेके, बट सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे पता नहीं था। एंड स्टिल आई कांट बिलीव कि मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया। Great, great. So, Dr. Subhanshu. Sir, same, घर पे sir. My फीलिंग क्या family थी? was, नॉट ओनली अबाउट पासिंग द एग्जामिनेशन बट इंडीड विद अ ग्रेट स्कोर. sir, very emotional, sir. My father got really emotional. He straight away took me to the temple and we seek blessings of God. My mother was also very emotional, sir. She started crying. My brother told me actually he saw the result first. Then he told me that after seeing the result, my mother started crying with happiness, sir. Great, great, great. Indeed, that emotion is the ultimate one, as I always say. Basically, those two smiles you have to witness once in your lifetime for sure. My next question to all of you would be, like, how did you begin your preparations? And in this, I want you all to be very much clear. Crystal clear about your approach. Not only just tell me about the last 6 months of preparations, but even before that, during your UG days, what was your approach for the examination? Because nowadays we see all of them saying ki, okay, I have just prepared for 2 months and I have cracked the examination and all of that. So a true and a genuine approach of your studies basically from your UG days. Let's start with Dr. Sumanshu. Sir, whatever I said will be the truest form of me. Sir, I tried to start in sixth year with pathology subject. But sir, I couldn't be able to complete it because of the last year partying and all. Sir, but when I came here, I got strictly for studies only. सिर्फ सर कोचिंग का पढ़ा, रोज पढ़ा सर। जितना आप लोगों ने बोला था कि आज का आज ही पढ़ के खत्म करना है, सर आई डिड द सेम। रोज पढ़ता था, फिर उसको रिवाइज करता था। सब्जेक्ट खत्म हुआ, नया सब्जेक्ट शुरुआत हुआ, तो उसके बाद भी कोशिश करता था कि पिछला सब्जेक्ट छूटे नहीं। Right. उसको भी रिवाइज करता चलता था सर। फिर क्वेश्चन लगाता था। आप लोग के एक सबसे अच्छा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ, फिर उसके 1 या 2 वीक बाद उस चीज का टेस्ट होता था, आपकी टीएनडी होती थी, तो उस चक्कर में वो एक रिवीजन पहले ही हो जाता था हमारा। True. तो वो अप्रोच सर बेस्ट रही मेरे लिए। तो आई टुक टीएनडीज रियली सीरियसली। आपने तो देखा ही है, आपके सामने ही बैठते थे Right. हमारे सर। तो सर टीएनडी को सीरियसली लेने का लास्ट तक फायदा हुआ सर। Great, great. That's most important, I feel, because people think initial TNDs are not helpful and therefore people start skipping it. Dr. Sohail, what was your approach since usually and then in the last 6 months here? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सर्जरी से ही पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि सर्जरी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट था। तो बट मेन वीडियोस में इतना सारा कंटेंट था कि आई कुडंट कंप्लीट इट। बट जब मैं यहाँ आई एफएमजी मैंने ज्वाइन किया, आई वाज सो ट्रू टू माय प्रिपरेशन कि मैंने फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स जो था आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो किया, कि घर जाके अच्छे से रिवीजन करना, क्वेश्चंस लगाना। वो टॉपिक जैसे आप पढ़ाते थे, हर्निया वगैरह जो भी था, मैं बहुत अच्छे से जाके स्टडी करती थी, एंड इवन उसके क्वेश्चंस लगाती थी। और मतलब
I true to stick and followed your advice very much. Great, great. That's most important. Being like trusting your faculties is actually very important at this point of time. Dr. Abhishek, what was your approach? सर स्टार्टिंग से हमने तो 12वीं में था तब तीन सब्जेक्ट करके आया था, ऑप्स गायनी सर्जरी और पीडिया पढ़ के आया था। बट वहाँ Mm-hmm. से आने के बाद सारा कुछ हमने भूल गया था। फिर यहाँ आने के बाद जो जो भी आप सबने बताया था वैसा ही करता गया। हर जो ऐसा बोला गया था आपने बताया था कि जैसे जाना है क्लास करने के बाद एक बार रीड मारना है, वैसा ही करता गया Right. और साथ में क्वेश्चन लगाता गया। और फिर जैसे ही पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता था एक बार फिर से रिवाइज करता था दूसरा सब्जेक्ट का स्टार्ट होने से पहले। फिर ऐसा ही चलते रहा। आपका टीएनडी अटेंड करता था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ज़्यादा ऑफलाइन में मज़ा आता था। और ऐसे ही चलता रहा और बहुत हेल्प हुआ आपका टीएनडी सर। और लास्ट में जो क्यूआरएस था, लाइक वो तो मेन ऐसा था कि वही हमें हेल्प किया, लास्ट में याद आया जो कि मेन टॉपिक्स था वो। Great, great. Sir, I would I'm like to add pleased to hear one that. thing. Sure, sure. Sir, no, sir, notes plus TND is more than enough for this exam. Notes पढ़ लो, TND पढ़ लो, खत्म है सर। पूरा पेपर वहीं से आता है। Great. So my next question would be regarding that itself because as we saw after this examination, usually जो हर एग्जाम के बाद होता है थोड़ा हो हल्ला होता है like there's a lot of noise around ki the paper was extremely difficult and all of that. Though we have conducted a session where we concluded कि okay the paper or the examination was moderate to difficult, but it was doable ultimately at the end of the day, and that has been showcased with the results. Like I thought basically like all the AFMG students, like there were two things. One, AFMG students, most of them were confident enough that at least the exam was doable, and we are not sure if we'll be able to pass or not, but at least the exam was doable. It was not completely out of the box. So I thought one of the thing is happening. Either all AFMG students, most of them are passing, or most of them are failing. Something in between that, because all the other students were like giving me a completely different scenario. So, but I'm glad कि the results turned out in our favor. तो my question regarding that itself कि exam pattern क्या था इस बार, तुम्हें क्या अलग लगा जो तुमने सुना था इसके पहले during your preparation time उससे, और दूसरी बात कि definitely जो भी तुम्हारा source था, जो भी तुमने पढ़ा था, was it enough to definitely approach the examination? So let's start with Dr. Sohail. सर मेरा तो ये था कि फर्स्ट पेपर जो था सम क्वेश्चंस वर डायरेक्टली लाइक बैसिलस सीरियस वगैरह लेप्रेसी वगैरह के क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से थे कि हम मार्क कर सकते थे। बट Right. सम क्वेश्चंस वर लाइक ट्विस्टेड कि उनकी लैंग्वेज ही समझने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। बट एज पर योर एडवाइस एंड डॉक्टर विकास की जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आंसर आ रहा है आप वही मार्क करो, तो जैसा लगा मैंने वही मार्क किया एंड बाय गॉड ग्रेस आई क्लियर्ड इट। बट सच में ऑनेस्टली स्पीकिंग की क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ट्विस्टेड थी। Right. That's most important that I've been hearing from a lot of students कि sir भले topic same थे, the language was much more twisted, so it becomes difficult. So I feel from here people should seek an advice that you have to practice more amount of questions so that you usually get more used to different kinds of languages. Dr. Sumanshu, what is your take on this? सर सेम सर के क्वेश्चन थे सिंपल, बस लैंग्वेज ट्विस्टेड थी। पर सर आप ही की वजह से उसकी आदत भी लग गई थी। टीएनडी से ज्यादा ट्विस्टेड तो नहीं थी सर उसकी लैंग्वेज। टीएनडी तो बहुत ही ट्विस्टेड लैंग्वेज की होती थी, तो सर उसकी आदत लग चुकी थी। बाकी सर एक चीज मैं बोलूंगा जो एफएमजी खुद के लिए ही नहीं करता है सर, जो इनकी क्यू बैंक की वो है, जैसे कि जो इनका वो क्या कहते हैं जीटीज होते हैं, जो सर अपलोड करे थे सर, मैंने 2-3 जीटी दिए थे। मोस्टली लैंग्वेज मेरे को तो रिगार्डेबल लगी उसके, जीटी जैसी ही, एफएमजी की जीटी जैसी ज्यादा लगी मुझे रेदर देन किसी ऐप की। तो ये बहुत Right. अच्छा प्लस पॉइंट है सर एफएमजी का, जो खुद ही वो नहीं करते हैं कि प्रमोट करते हैं। ये प्रमोट करना चाहिए सर ज्यादा। That's true because I feel most of the times बाकी platforms में usually students make the questions. Here we faculties itself we give away our questions even in the grant test. So that मैंने makes a दो difference जीटी a दिए lot. थे, बहुत सिमिलर लैंग्वेज थी। और आपकी टीएनडी की तो मोस्टली वैसी ही लैंग्वेज थी, सिंपल क्वेश्चंस की भी वैसी ही थी। Right, right. So that's more important that you get practice at least to these type of यस सर। questions. Dr. यस सर। Abhishek, तुम्हारा क्या approach रहा? सर क्वेश्चन तो ट्रिकी था, लेकिन एफएमजी के थ्रू जो भी हमें कंटेंट दिया गया था हमें डिफिकल्ट नहीं लगा क्वेश्चन करने में। जैसा कि डॉक्टर स्वांशु ने बोला कि आपका टीएनडी का जो क्वेश्चन होता था उससे तो कम ही था ये। क्योंकि हमेशा उसमें हमारा स्कोर पता है आपको कैसा रहता था, लेकिन क्वेश्चन आपका टीएनडी से ये था, इजी लगता था। तो उस चीज का हमें अभ्यास हो चुका था पहले ही।
वही बात है कि एटलीस्ट इफ यू हैव like practice for the worst, even the difficult seems easier. That I always believe in. इवन My कंटेंट भी हमारे पास सफिशिएंट था सर, जो कि एफएमजी के थ्रू दिया गया सर था हमें, तो इजिली कह दिक्कत नहीं सकता हुआ हूँ सर, पढ़ने में। ट्रू 30 to 40 नंबर्स एएफएमजी के नोट्स प्लस टीएनडी से इजिली थे। Great, great. Because that's the only problem. Like I have been hearing out from majority of the students, like we have to do the full contents in the apps, or we have to read the textbooks now. Itna sara depth mein pucha gaya and all of this. But ultimately, at the end of the day, the topics that have been discussed in the recalls, I'm not talking about the exact question, but yeah, the topics which have been discussed, those were more or less similar. Yeah, some topics Hmm. may not be covered definitely in the regular classes. That we have to accept, obviously, but yeah, majority of them were covered. So I was not able to get this itself कि अगर पढ़ाया गया है तो डिफरेंस क्या था. तो as you rightly mentioned, it was the language basically which was pretty much twisted. That's the reason why you are not able to get to the answers. That's most important. सर Next, जो आप my कहते question थे to you all टीएनडी would. में, Mm-hmm. Please तो go. आप कहते थे टीएनडी में जब हम बोलते थे कि सर प्रीवियस ईयर कैसे है, प्रीवियस ईयर में तो सर तो आप कहते थे रिकॉल वन लाइनर होते हैं पर एक्चुअल क्वेश्चन वन लाइनर नहीं होते, Right. रियलिटी थी सर वो। That's true because what you have seen now by yourself कि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि रिकॉल्स डेफिनेटली तुम्हें बस शायद मेन लाइन कीवर्ड याद है क्वेश्चन के और आंसर याद है. उसके अलावा जो बाकी की 3-4 लाइन थी वो जो कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, दैट यू मे forget definitely, and that makes the question more difficult to solve. That's the यस। major one, right? Now, my question to you would be like when you began your preparations, obviously long hours of classes, offline that too, sitting for longer hours, and never used to attending classes for so long as earlier. How did you manage that? First thing. Secondly, all of you mentioned ki sir, after coming back home, we made sure that we revised all the content that we have been like taught for that particular day. And apart from that, did you practice any MCQs on the same day, or how did you manage all of this? Because it was overwhelming when you started, right? So, Dr. Sumanshu. सर जब हमने स्टार्ट किया था तो सर विकास सर ने एक लाइन बोली थी, और इनफैक्ट जो आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम माइक्रो ओनली, आई स्टार्टेड फ्रॉम माइक्रो क्लास ओनली। सर विकास सर की पहली क्लास थी तो उन्होंने यही बोला था कि जिस दिन जाओगे उस दिन पढ़ना, और उन्होंने कहा था कि क्वेश्चंस भले मत लगाना, क्वेश्चंस जब वो साइकिल खत्म मतलब वो क्लास खत्म हो जाए उसके बाद लगाना, ताकि तुम्हें ये याद रह सके तुम्हें कितना याद है। Right, ऐसे तुम अभी पढ़ के अभी लगाओगे तो तुम्हें याद ही है, बट ये मेक श्योर करना कि जो तुम जा रहे हो एटलीस्ट मेक इट गो थ्रू योर आईज ओनली। रिमेम्बर मत कर लो पर एक बार देख लो। तो सर वो तो मैंने लास्ट तक किया है। इवन इन क्यूआरएस आई मेड श्योर कि आई लुक गो थ्रू द पेजेस ओनली सर। true. और दूसरा ये कि जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है उसके बाद दूसरा से शुरू होता है, तो भले आपने कितना अच्छा पढ़ा हो पर आप वो पिछला सब्जेक्ट भूल जाएंगे। तो सर Right. टीएनडी के ये हो जाता था कि हम लोग वो सब्जेक्ट एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ लेते थे, फिर आपकी वो अटेंड कर लेते थे, तो दो रिवीजन तो हो ही जाते थे। एक टीएनडी का रिवीजन कि टीएनडी के नोट्स भी आके वापस से पढ़े, तो ये Mm-hmm. बहुत हेल्पफुल थी सर। Right. विकास सर की That's एडवाइस वो मान ली तो वो काफी वो फायदा हुआ था उससे। true. True. That's most important. I feel you have rightly pointed out. Key in between TNDs would definitely help. Dr. Abhishek, what is your take? सर जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि जिस दिन क्लास खत्म हो घर पे जाके पढ़ना है, तो वैसे ही हमें एक बार पेपर्स के थ्रू जाते थे, जो भी नोट्स हमारे पास होता था, और क्वेश्चंस भी लगाते थे। और जैसे कि विकास सर ने बताया था हमें कि बाद में भी लगाना है सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, Right. ताकि तुम्हें जो याद है वो रिवाइज हो जाए। तो वैसा हम करते थे। और टीएनडी जो बीच में होता था आपका, वो तो करते ही थे हम लोग सर। Right, great. Dr. Sohel, what was your approach on this? And definitely, how did you manage solving questions as well? मेरा तो एक ही अप्रोच रहता था, जैसा आप लोग कहते थे कि एक बार घर जाओ, पूरे पेज पलट के देख लो, चाहे कितनी भी नींद आए, एक बार पेज पलट के देख लो क्या है। तो सर आई मैनेज कि मैं क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस उसी टॉपिक के लगा के सोऊं। तो ऐसे ही मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से ही रीड कर लेती थी, ज्यादा Hmm. डेप्थ में नहीं। बट आई मेक श्योर कि मैं नोट्स एक बार गो थ्रू करूं, क्योंकि आप Right. लोगों ने पहले से स्टिक टू द नोट्स, स्टिक टू द नोट्स हमेशा यही एडवाइस दी है, तो मैंने वही ब्लाइंडली फॉलो किया है। Great, great. That's most important. I feel that you have to stick to your notes and regularly you have to be persistent. That's I feel is the most important thing to be remembered.
Now my next question would definitely be, once you were attending all your classes and everything, so I would like any one of you to answer this particularly. Like I've seen a lot of people, so regular classes भी है, उसके बाद घर जाके पढ़ना भी है, and then we have to solve our questions also. So and TND would be of a previous subject which has been conducted. So how can we manage to revise that subject? How can we attend a TND? तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग टेस्ट एंड डिस्कशंस मिस आउट कर देते थे, which I feel is the only exception which occurs in AFMG. Ki, there would be test and discussions along with the subjects which will be going on, even at the end. But this is the different thing. But I feel even most of the AFMG students sometimes tend to miss it because of the overwhelming syllabus and the classes and everything. तो तुम लोग बोल रहे हो कि तुमने सब अटेंड किया, तो कैसे मैनेज हुआ बेसिकली? Was it difficult and how did you like definitely manage it? सर अगर आप उस दिन का उसी दिन पढ़ते हो तो सर कभी भी इतना बर्डन नहीं होता जो मैंने फील किया। भले मुझे रात Right. को सोते सोते 3 या 4 बज जाते थे, पर मैं उस दिन का पढ़ के सोता था तो मुझे एक साथ कभी बर्डन नहीं आया। और दूसरा सर एफएमजी ये मेक श्योर करता था, विच इज रियली कमेंडेबल, कि सब्जेक्ट्स के बीच में गैप दे देते थे। तब Right. टीएनडी होती थी कि एक दिन का गैप मिला फिर टीएनडी होती थी। तो आपने लास्ट तक अपना वो सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, एक दिन में वो सब्जेक्ट आपको रिवाइज ही करना होता था, तो इतना बर्डन कभी नहीं आता था सर। जैसे बाकी कोचिंग्स में मैंने देखा अपने दोस्तों से कि पूरे 10 Hmm. तक क्लास चल रही है, 10 बजे तक, 9 बजे तक, फिर अगले दिन दूसरी क्लास शुरू हो जा रही है, या 4-5 क्लासें अलग अलग सब्जेक्ट की साथ में चल रही है। ये कभी नहीं Hmm. किया एफएमजी ने। एक दिन का ब्रेक देते थे, फिर उसके बाद टीएनडी होती थी, तो उसमें वो मैनेज हो जाता था। और सर टीएनडी वाले Great. दिन भी आप ऑलमोस्ट 7-8 तक छोड़ देते थे, तो टीएनडी भी रिवाइज हो गई, तो मल्टीपल रिवीजन वही हो जाता। आपको याद भी होगा मैंने पूछा था सर आपसे रिवीजन से पहले कि सर मेरे 2-3 रिवीजन तो पहले हो गया, आपने बोलता वो काउंट मत करना, अब जो होगा वो काउंट करना। Right. तो सर वो That's कॉन्फिडेंस था कि पहले से ही रिवाइज हो रखे हैं इतनी बार तो। great. सर Great. वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि Mm-hmm. सर जैसे बायोकेम था, उसमें Right. मैंने टीएनडी ज्यादा ऑफलाइन नहीं अटेंड करी, मैंने ऑनलाइन। आपके एफएमजी का ये बेस्ट चीज था कि वो ऑनलाइन भी ये सारी चीजें अपलोड कर देते थे। True. तो बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स था, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपने बताए थे टीएनडी में, मैंने सारे अपने नोट्स में ऐड किए। एंड लिटरली स्पीकिंग सर कि वो उसमें से ही 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब बेनिफिशियल है हमारे लिए। True, true, true. I feel that's most important कि regular classes में possible नहीं होता है to teach everything, to some points basically which are extra that you have to gain from test and discussions, and that majorly makes a difference, right? So that's most important. Thank you for that. Now, my next question to you would be about the revisions, like not about the revisions during the classes, but after, once you're done with classes, you had almost a time of, I feel your syllabus was completed 2 months earlier almost, right? So there was a lot of chance that you may get off track, you may get derailed, right? But you had to manage your revisions along with the rapid revisions classes and everything which was going. So what was your plan or strategy during the revision time? How many revisions did you do? And MCQs या फिर PYQs या फिर ग्रैंड टेस्ट के बारे में उस टाइम पे कैसे मैनेज किया? सो दैट प्लान आई वांट टू नो, डॉक्टर अभिषेक। सर हमने तो जैसे ही खत्म हुआ था, तो जो भी आपने बताया था कि हर सब्जेक्ट के लिए, बड़े सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 दिन देना है, उस तरह से हमने किया था। छोटे सब्जेक्ट के 1 दिन दिया था। वैसे करते हुए हमारा एक रिवीजन अच्छे से हो गया था, दूसरा रिवीजन चल रहा था, ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाया था। और फिर से 2 ग्रैंड टेस्ट दिया था सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, उससे पहले 2 दिया था, पूरा सब्जेक्ट होने से पहले टोटल 4 दिया था हमने। ओके। और फिर उसका जो भी 1 दिन देता था मैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए टीएनडी का। राइट। और लास्ट में जो हमारा 10 दिन था कि फिर से 10 दिन पढ़ने की कोशिश किया था पूरा सब्जेक्ट, लेकिन नहीं हो पाया था मेरे से और फिर लास्ट के 3 दिन आपका क्यूआरएस बस पकड़ के बैठा था सर, वो बहुत हेल्पफुल हमारे लिए था। Great, great. Thank you. Dr. Sohel, what was your approach? सर मेरा तो ये था कि जैसे ही हमारी वेकेशन शुरू हुई, वेकेशन क्या मतलब छुट्टियां शुरू हुई, Right. तो उसमें मैंने डॉक्टर गोयल सर जो हमारे साइकेट्री के फैकल्टी है, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि 45 डेज में ट्राई करना अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने का, एंड रेस्ट 15 डेज में अपना सेकंड रिवीजन कंप्लीट करने का। Right. तो मैंने वही फॉलो किया, एंड मैंने एक जीटी दिया था टू बी ऑनेस्ट, बट यही मैंने फॉलो किया था। Great, great. डॉक्टर सुभांशु, रिवीजन के सर टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी थी? सर जैसे आपने बोला ना कि ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो मैं भी 2-3 दिन के लिए ऑफ ट्रैक हुआ था दिवाली के बाद। सर फिर मैं ट्रैक पे आया तो मैंने पहला अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाया, मैंने सर्जरी से शुरू किया, सर्जरी और मेडिसिन से। तो सर वो पढ़ा मैंने, फिर उसके बाद सर मैं धीरे धीरे बढ़ता रहा। साथ में एक मेक श्योर किया मैंने, जैसे आपने बताया था कि वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्मा,
माइक्रो, पैथो और एनेट। ये चार सर मैंने कोशिश करी है कि 2 महीने मैं हर अल्टरनेट डे इनको पढ़ता ही था। तो ये चार Right. सब्जेक्ट मैंने रिवीजन से अपने अलग ही रखे थे। तो ऐसा करके सर मेरे फार्मा ऐसे वाले सब्जेक्टों के 4-5 ही हो गए थे, बाकी मेरे 2 ही रिवीजन हो पाए थे सर लास्ट तक। Great, great. That's most important advice I feel you have given because जब वोलेटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं, मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा रिविजन करना इज वेरी मच मैंडेटरी एंड रिकमेंडेड ऑल्सो. That's very much important, I feel. Now, this was the usual thing about your preparation strategies and everything. Now, I would like to ask you one thing definitely that, like, what was that one special thing that you did which you either got an advice about or definitely you have did it on your own, but which played a very major role and a drastic change it made in your preparation journey. कोई एक चीज जो शायद तुम्हें लगता है कि हाँ, इस चीज ने मेरे प्रिपरेशन जर्नी को बहुत अलग से शेप इन किया. सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर सुभांशु. सर अगर मैं जर्नी की शुरुआत से बात करूं, तो सर पहला वो वाली एडवाइस कि रोज पढ़ना, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त थे जो लैग हो जाते थे। वो राइट. रोज पढ़ने वाली एडवाइस से मेरे को कभी बर्डन नहीं आया। दूसरा सर टीएनडी, टीएनडी की वजह से सर जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है मुझे, वो मेरे को अब लगता है कि उसी की वजह से 200 क्रॉस हुए हैं मेरे, वरना मैं भी थोड़ा नॉर्मल में रहता। सर तीसरा ये कि सर मैंने सीबीटी दिया था, तो सर सीबीटी की वजह से जब मैं एग्जाम में बैठा, तो सर मेरे को बहुत नॉर्मल फील है। ऐसा नहीं हुआ कि अरे बहुत एग्जाम दे रहा हूँ, ये बहुत, इट राइट. वाज लाइक आई वाज गिविंग जीटी ओनली सर। और ट्रू. लास्ट में ये कि जैसे बहुत से दोस्त है मेरे, उनके फार्मा वगैरह मिस हो गई थी, फार्मा हुई, माइक्रो हुई। तो सर अगर मैं इनको रोज पढ़ रहा था तो मैं इनके लिए बड़ा कॉन्फिडेंट था। और सर मैंने ऐसी रिकॉल देखा था चलते फिरते, इनमें सर मेरा स्कोर 90% से ऊपर ही था इन सब। और फार्मा से ग्रेट. इस बार क्वेश्चन भी ज्यादा आए थे, फार्मा और माइक्रो से। तो सर उसका भी बहुत फायदा हुआ मुझे। Great. So main four things you have pointed out very correctly. So first thing I like to just reiterate the fact about the CBT, the computer-based test, as you told, Dr. Vikas, and we were actually thinking about this. So at that time, like the only thing that was in mind, at least people should be like at least like their anxiety should curb down before going to the examination. They should just get an experience. What marks the score, that was literally secondary in this CBT basically. But yeah, a lot of people actually got help from this. The anxiety and nervousness was curbed down somewhat. Dr. Sohail, what would be that special thing that you would think कि इस चीज ने मेरी जर्नी थोड़ी बहुत शेप कर दी? सर वो एक एडवाइस जो आपने बोला, स्टिक टू योर नोट्स, यही एडवाइस मैंने फॉलो करी। आई स्टिक टू माय नोट्स। एंड जो एक्स्ट्रास थे वो मैंने टीएनडीज के वीडियोस देखे थे। और मुझे आप आपसे मैंने कई बार एडवाइस ली थी, सर मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, मेरे क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आई फॉलोड दैट कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाऊं। तो True. यही मेरा अप्रोच रहा है। Great, great. That's most important. Dr. Abhishek? सर जो डेली पढ़ के ख़त्म करने वाली चीज़ थी वो किया, और लास्ट में जो था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि वीक है, तो उसको तो किया ही किया फिर। बट जो हमारा बढ़िया सब्जेक्ट था उसको Mm-hmm. मतलब कि अच्छे टाइम से उसको रिवीजन किया, ताकि जो मेरा बढ़िया है उसमें गलतियां ना हो। जैसे सर्जरी हो गया, ऑप्स गायनी हो गया, और जो बायोकेम वगैरह सब था, वो सबको मैं काफ़ी बार रिवाइज किया था, ताकि जो भी मेरा बढ़िया है उसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए। उस जो वो आई थिंक उसका क्वेश्चन सच में गलत नहीं हुआ होगा मेरा ज़्यादा। तो वो सब है Great. कि मेरा मार्क्स को सही दिया, और थोड़ा बहुत मैं शेड्यूल में गलती किया था। अगर सही टाइम पे होता तो और भी अच्छा मार्क्स आ जाता मेरा, No जैसा issues. आपका। But you have यस। performed really well. So, my next question would be in regards to not academics basically, but the journey itself. Like we know, as I've always said, ki, this is not a sprint, this is a marathon. And in this marathon, basically, there would be ups, downs, emotional, mental lows, a lot of problems, okay, all together. So, जब हुआ होगा when you might have broken down, okay, so how did you manage that? ऐसा तो होता है, एग्जॉशन होता है, बर्नट आउट होता है, ऐसा लगता है सब छोड़ दे, भाग जाए, एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो फेज कैसे मैनेज किया? हु वर द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली? योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एनीबडी स्पेशली टू मेंशन? डॉक्टर अभिषेक. सर काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हो ही नहीं रहा है, भूल जा रहा हूँ। तो हमेशा मैं एफएमजी का फैकल्टी से स्पेशली आपसे बात किया करता था, सर कैसा हो रहा है, अब क्या करें। तो आपने जैसा बताया था वैसा करता गया, कैसा होगा, नॉर्मल है, थोड़ा शांति लो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा बढ़िया है वो पढ़ो, ये सब। और उसके बाद हमारे घर पे भी हमारी भाभी मुझे बहुत हेल्प की थी इस चीज़ के लिए, तुम्हारा, और सपोर्ट दी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फैमिली मेम्बर्स में जो कि डराते हैं
कि डिफिकल्ट एग्जाम है, ये है। बट हमारे एफएमजी के जो भी फैकल्टी थे वो हमें बहुत स्ट्रेंथ दिए, हिम्मत दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेगा सब हो जाएगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है, बस 150 मार्क्स ही लाना है, हो जाएगा। वही हमने किया जो कि एफएमजी बताया कि कैसे कैसे करना है। Great, great. Dr. Sohil? मैं तो ये बोलूंगी कि फ्रेंड सर्कल इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, True. क्योंकि आपका अगर फ्रेंड सर्कल ही कि नहीं यार चलो थोड़ा बोर हो रहे हैं या मन नहीं लग रहा चलो पार्टी करके आते हैं, बट मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं यार थोड़ा चाय पीते हैं, एफएमजी की लेन से जहां जाएंगे वहां पोस्टर है, हमारे सीनियर्स का भी है, हमें भी वहां पे आना है, ये हमारी मोटिवेशन रहती थी, फिर वापस से चाय पी के फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो ऐसा था कि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। Right, right. I feel that's most important because I still remember the first line of my classroom. Usually, you're one of them, and all you people, you used to be in a group, and I feel almost everybody in that line has passed. So that actually makes a difference. 'Cause if everybody is serious and everybody is definitely motivating each other, that plays a huge role. Dr. Subhanshu? सर सेम सर एक तो सर आपको याद होगा आपने सर्जरी के बाद एक बहुत बड़ा स्पीच दी थी ओह, सर, वो यस तो सर, मुझे वो हमेशा याद स्पीच रहती थी। लाइक वो तो सर रुला एकदम दिया था बहुत बहुत सर। बता दिया इमोशनल और था सर वो पूरे बहुत मन अच्छी पे। स्पीच थी। कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं हो रहा, तो फिर वो स्पीच याद आती थी तो और मोटिवेटेड रहते थे। और बाकी सर ये भी जो पॉइंट आउट करा दोस्त वाली बात, सर अर्नव हुआ, मैं, सोहेल, अभिषेक, अलग ही चलता था सर हमारा कि पढ़ना है पढ़ना है। एक एक नीचे एक थोड़ा बैक डाउन हो रहा है तो उसको फिर चढ़ाते थे हम साथ में कि पढ़ते हैं भाई, हो जाएगा, 4 महीने की बात है, 2 महीने की बात। तो हम सब ने सर मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करा। और सर बाकी आप लोग तो हमेशा ही रहते हो, आपसे तो मैंने कितनी बात करी है, आप हुए, वैभव सर हुए, लास्ट लास्ट में भरत सर से मैंने बहुत बात करी है, और आप लोगों ने बहुत हेल्प करा फिर। और Great, महेश great. सर सर तो लास्ट हमेशा ही में रहते थे, चाय पीने जाओ Indeed, महेश सर मिल जाते थे, उनसे बहुत बात करते थे हम। indeed. सर That's लास्ट में that's तो ऐसा हो most गया था important. कि होगा ही नहीं। मैं और सुवांशु लाइब्रेरी से निकालते थे, ऐसा मैं हिम्मत ही हार गया था कि अब कैसे होगा, मेरा डिवीजन, दूसरा डिवीजन तो हुआ ही नहीं। सुवांशु हमेशा बोला करता अभिषेक तुम्हारा 225 पक्का क्रॉस करेगा, तो लेकिन भले ही 225 नहीं आया, मैं पास हो गया, अच्छा ठीक ही मार्क्स आया। और Great. सच में मेरा हमारा दोस्त है जो बहुत हेल्प किया है, जब भी सुवांशु, सोहिल, अर्णव है जो हमेशा साथ रहे, और शीना साथ में थी सर। ग्रेट, आई फील दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब दोस्त ऐसे हो जो सपोर्ट करे तो द जर्नी सीम्स इजियर। पढ़ना तो हमें ही है बट एटलीस्ट द जर्नी सीम्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर इजियर। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट और थिंग सर नाउ। सबसे अच्छी बात सारे या निकल गए, सबसे अच्छी बात सारे अच्छे ग्रेट, नंबरों से निकल गए सर, कोई नहीं रुका। that's indeed a great thing basically, because when all of you are studying so tirelessly and with a very good intent, obviously like ऊपर वाले को भी तुम्हें रिजल्ट तो देना ही था। Now my last question to you all would be, what is your final piece of advice to all the upcoming FMG aspirants? मुझे उनके लिए भी बताना, those who are going to first appear for the examination in the July 2025 attempt, and secondly for those who were not able to do it this time, so what would be the piece of advice for them? Dr. Sumanshu? सर पहली बात सर कि जो फैकल्टी अपने, हर फैकल्टी की अपनी स्पेशलिटी है, जो फैकल्टी जो बोल रही है अपने सब्जेक्ट के लिए, ऑलवेज स्टिक टू दैट। और सर दूसरी बात ये कि अगर इफ यू फील डाउन, टॉक टू फैकल्टी। ये मत शर्म मत करो कि नहीं, अरे यार मैं कैसे बात करूं, बात करो, बात से ही होता है। सर मैं तो कितनी बात करता था, कुछ भी होता है मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी हैं। हमेशा बात करो, क्वेश्चंस लगाओ, और मेक श्योर करो कि नोट्स पहले पहले मेरे नोट्स बहुत अच्छे से तब दूसरी तरफ आ गए हो। ये नहीं कि नोट्स भी आते हैं सर ने अच्छा नहीं पढ़ा है, ये कभी काम नहीं आएगा, ना इधर के रहते हैं सर ना फिर उधर के रहते हैं। पहले अपने True. नोट्स पे फोकस करिए। फिर सर जो जिस भी कोचिंग में हो आप, जो आपकी कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है पहले उसमें एस करिए, तब आप दूसरी तरफ जाइए। पहले वो कंप्लीट हो जाए तो सर मैंने देखा है सर एएफएमजी इतना प्रोवाइड कराता है कि यू कैन इजिली स्कोर अबव 200। वो हमारी सिली मिस्टेक्स होती है, हम वो करते हैं जो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, वरना सर एएफएमजी ने बहुत बहुत ज्यादा चीजें दी हैं। आई डोंट फील एनी अदर कोचिंग गिव समथिंग लाइक दैट। विकास सर ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने हर अपना प्रॉमिस पूरा किया। और सर नोट्स पे रहेंगे। बाकी सर लास्ट के महीने में मेक श्योर करो कि एटलीस्ट और 200 क्वेश्चन अ डे, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ही काम आते हैं, नोट्स तो याद रह जाते हैं। पर Right. वहां पे क्वेश्चन किस तरीके से लगा रहे हो वो मैटर करता है। तो सर मैंने तो ये किया था कि लास्ट में आप लोगों ने बोला था कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लगाना। आई मेड इट कि सर 300 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लगाता था, और जिस दिन जीटी होता था तो ऑलमोस्ट 600 700 क्वेश्चन हो जाते थे मेरे लास्ट लास्ट के। Great, great. क्वेश्चंस लगाने, सर से बात करिए, बाकी सर नोट्स पे स्टिक रहिए लास्ट तक।
चाहे कुछ भी आ जाए मार्केट में, आपको अपने नोट्स लास्ट तक पढ़ते रहने हैं। Right. और सर टीएनडी को सीरियसली, मैं तो ये हमेशा सजेस्ट करूंगा, टीएनडी को बहुत सीरियसली लें। Great. That's the most important piece of advice that you added up. कि कुछ भी आ जाए market में, because there would be a lot of things that would be on YouTube, on Telegram. Everybody would be claiming कि इसमें से आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा. But trusting your source till the last makes a great difference basically in your journey. Dr. Sohail? तो मेरा भी यही सेम एडवाइस रहेगा कि ट्रस्ट वन सोर्स, कि जो तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वही पढ़ो। क्योंकि मेरे भी लाइब्रेरी में मेरे साइड वाले की नहीं, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, इसमें से आ जाए, नहीं, मैंने कहा मैं अपने नोट्स ही पढ़ूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड एक्स्ट्रास के लिए टीएनडीज हैं और यहाँ क्यूआरएस है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से कवर होता है। तो उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। अपने ये क्यू बैंक्स हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी। तो Right. मतलब यही है कि स्टिक टू द वन सोर्स, वो बहुत एनफ रहता है। Great, great. That's most important because more importantly, like usually the first timers, because of their anxiety and some advices that they get, and secondly repeaters, because of that, uh, like the less amount of trust that they could put in after the failure, basically in the faculties or in the notes, they tend to get distracted quite often. That's true. Dr. Abhishek? सर जैसा इन्होंने बताया कि जो भी फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो ना, स्टिक टू द नोट वाली बात है। बट आई डोंट नो अबाउट एनी अदर इंस्टीट्यूट। एफएमजी के जो भी हमारे फैकल्टी थे, हमेशा हमारे साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा खड़ा रहा है। जो भी डाउट पूछो, हमेशा एट द पॉइंट वो हमें रिप्लाई करते थे। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि शायद ही कहीं और ऐसे हमारे फैकल्टी होंगे जो कि इतना एक्टिवली हमें रिप्लाई करते होंगे, रिस्पॉन्स करते होंगे। हर इवन हमारे छोटी छोटी गार्डियंस वाले भी काम किए हमारे साथ, हर चीज़ पे, बीमारी हो चाहे कुछ हो, हमें हेल्प किया है एफएमजी ने। सर और ये जो एफएमजी की यंग आर्मी, आप, वैभव सर, तालिब सर, मारुति सर, यस सर, ये वेरी चार तो सर कमेंडेबल, ऐसे हैं, वेरी। कभी भी बात करो कभी भी आता है रिप्लाई। बाकी टीचर तो सर थोड़ा वो बिजी रहते हैं, पर आप चारों से हमेशा रिप्लाई है, चाहे आप कितने भी बिजी हो चारों। सर ऑल थैंक्स टू यू फॉर, सर लास्ट में सारे डाउट आप चारों ने ही सॉल्व करे। Our pleasure. It is यस सर, completely. यस सर। सर Thank आप you यू so आर द much. वन मैन आर्मी। सर मुझे कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन में डाउट होता है, सर ये लो स्क्रीनशॉट, मुझे बताओ ये क्यों ऐसा है। यस सर, इवन एट लाइक रात को 2 बज रहा हो, 1:30 बज रहा हो, कभी भी मैं क्वेश्चन भेजता था, आप रिप्लाई हमेशा किए सर। और और That's सर फैकल्टी एक really में और जितना चीज, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, सर आप लाइफ की प्रॉब्लम में भी वो करते थे कि सर ये यस रिपोर्ट सर, है मेरे यस घर सर, वालों की, ये भी बता देते थे सर। ये सब एफएमजी सर, वो क्या कहते नहीं थे सर, एफएमजी फैमिली है, तो true. लिटरली यू एक्टेड लाइक अ फैमिली सर। यस सर। In true एंड वी आर sense, वेरी as ग्रेटफुल कि हमें इस फैमिली का पार्ट बनने का चांस मिला। we are glad to, basically, as Dr. Vikas always says, as I said, in true sense, basically, we are a family, and not just till your examinations, but even after this. You would see, like, you would be welcomed with the same amount of love and affection, even after so many years, also in the institute. So make sure that you definitely keep on studying, because all of you are brilliant minds. So do not stop studying, even during your internship, and like, hope to see you soon as successful postgraduates. And thank you so much for joining in and sharing your insights about the FMG preparation journey. And all the very best from the team AFMG for all your future endeavors that you are going to undertake. Thank you so much, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच यस सर। सर फॉर सर, हेल्पिंग अस सर। ma'am. सर जल्दी मिलते हैं सर, थैंक यू यस सर। Sure, sure, सर। sure. क्या करना है Mahesh ji, सर? चाय पीने चले गए लगा तो। नींद आ गई इनको. सर, सर आप दिल्ली में हो अभी? हाँ यार, गौतम नगर आया सर था, जस्ट मिल के सुबह ही तो आया मैं. जाते सर, सर। सर इससे कैसे मिल गया आपसे? सर वो शुभांशु सबको बता रहे कि आप उससे मिलने ऋषिकेश गए थे। सर सबसे पहले फोटो भेजा और बोल रहा अरे सर मिलने आया था, सर मिलने आया था, ऐसा बता रहा था मेरे स्कोर्स देख के सर सर मिलने आ गए मुझसे। सर। सर मिले बिना एक्चुअली चले गए सर, मैंने आपके लिए मंदिर के लिए प्लान बना के रखा था, गाड़ी वगैरह रखी हुई, आप आए वही ही ना. नहीं। Rishikesh is usual place for me. Like, I keep on coming again and again. ठीक है सर, इस बार मिल के जाना, Sure, और पक्का. अपना अपना प्लान भी पूरा करेंगे सर, सर। Sure. सर नहीं सर, दिल्ली में करना ताकि हम भी वहाँ होंगे। दिल्ली में तो हुई कोई इशू ही नहीं है. जब आ रहे हो बस जस्ट मैसेज मी वंस सो दैट लाइक वी कैन मीट. सर सर पार्टी हो बहुत रहा है अच्छा, एफएमजी की तरफ से?
वो अभी डॉक्टर विकास और महेश जी आर द वंस हु टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, हम एकेडमिक्स अच्छा। तक है बस। तो सर पीजी में भी होपफुली मैसेज मैं करूंगा डॉक्टर आपको, विकास से बात करूंगा इस मामले में। हाँ, पीजी में भी पीजी, मैसेज करूंगा आपको डाउट। श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सर आप लेकिन वही है, इरिटेट तो पीजी के नहीं लिए हो पढ़ते हैं। जाते थे सर? क्या क्या? सर आप इरिटेट तो नहीं हो जाते थे? उतने क्वेश्चन पूछते थे, रात में भेज देते थे क्वेश्चन। यूज दैट्स यूजुअल। और मुझे वही लगता है कि अगर तुम उस पॉइंट पे अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो लाइक बीइंग अ फैकल्टी इट्स नॉट यूजफुल। मतलब हमारा काम बस पढ़ाना तो नहीं है ना यार, बस डिलीवर करके जाना तो कोई भी कर सकता है। इट्स मोर इम्पोर्टेंटली कि उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ रह गया डाउट्स, वी आर देयर टू सॉल्व दैट, एंड दैट्स आई फील, मतलब नहीं वो सर, मेरा ड्यूटी है। सर एक चीज बोलूं, जो भी। सर पहले सीनियर्स आते थे, अरे ओमकार सर ओमकार सर, हमें लगता था कैसे हैं ओमकार सर, क्या है ऐसा कि सब बच्चे ओमकार सर कहते हैं। अब समझ आया कि क्यों करते हैं। My pleasure, सारे बच्चे ही ओमकार सर, अब समझ आया क्यों करते सर हैं, मेरी सीनियर थी क्यों सब अन्वेषा आप ही दी। से मिलना चाहते हैं। यस सर, मेरी सीनियर थी अन्वेषा दी, उन्होंने तो बोला था, ओमकार सर की सारी जितनी टीएनडी है सारी अटेंड करना। सर पता है आपको एक बात, ये सर बोलना बच्चों को सर कि रिवीजन करते हैं ना जब, तो हम्म। मेक श्योर कि एक बार आपके टीएनडी 2x पे ही देख लें, बहुत फायदा होता है सर, लिटरली बहुत फायदा होता है। सच में सर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो मिस आउट हो जाते हैं वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और तो राइट। आपको भी पता है सर, क्वेश्चन से रिवाइज करो तो ज्यादा याद रहता है। हाँ। ट्रू। सर मेरा गलती यही था कि मैं कल टीएनडी करता था, उस टाइम देखता था, उसके बाद कभी देखा ही नहीं है, बस पढ़ता था पूरे मैंने नोट्स बस। अर्नब मानसी मानसी को तो जानती हैं सर आप, हम सब ने राइट। यही किया था, बहुत फायदा हुआ उससे। तो मैंने तो बायोकेम की 2 बार टीएनडी देखी थी। ग्रेट ग्रेट यार, सर जो मतलब भी। ये इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद जब एडवाइस देता हूँ बेसिकली, तो वही बात है कि मतलब कोई ना कोई एडिशंस होते रहते हैं हर बार, मैं खुद सीखता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने जब जो भी मेरी एडवाइसेस है, बहुत सारी तो मैंने फॉलो ही नहीं करी थी। लाइक आई एम अ पर्सन जो अपने टाइम पे तो स्ट्रेटेजी शायद बनाता ही नहीं था, बाकी तो मैं स्ट्रैटेजी तो मैंने भी बच्चों नहीं से बनाई, सीखा हूँ। सर मार्क्स स्ट्रैटेजी अगर तो मेरे स्टूडेंट से का भी नहीं कम, बनी थी सर। सर मार्क्स जो भी कम आए वो आई थिंक शेड्यूल के कारण, अब मैनेजर स्टूडेंट नहीं कर पाए इसी के कारण मार्क्स कम आए सर, शायद सही से शेड्यूल मेंटेन कर क्योंकि पाते सर तो वही शायद और नोट्स भी आ से, जाता। मैं बोल रहा हूँ सर 250 नंबर का आपके नोट्स और टीएनडी मिला के तो था ऑलमोस्ट। और सर एक और चीज, ये एफएमजी की जो जीटी वाली बात बोली ना मैंने सर, एक्चुअल में ट्रू है। उनकी जीटी से सच में लग रहा था कि हाँ पेपर ऐसे ही आया है, ट्रू, जो थोड़ी मैंने 2 बार लैंग्वेज अलग दिया सी था। थी। राइट राइट। जीटी जैसी थी इनके, क्योंकि एफएमजी की जीटी सर आपसे बात भी करी थी, सर इसमें अलग से क्वेश्चन हम्म आते हैं, ये वो वैसे ही आए हुए थे फिजियो वगैरह के तो। हम्म। सर इस बार सर्जरी के बाहर कुछ नहीं आया था, जितना हमने पढ़ाया था उतना ही आया था। उससे भी कम आया था राइट। सर, नहीं सर, उन नोट्स के बाहर नहीं आया था। उस नोट ग्रेट से ग्रेट, कम वही आया था टेंशन सर। था, बिकॉज आई वाज ऑलवेज की सर्जरी इज वास्ट, डेफिनेटली इनका भरोसा नहीं है जितना लास्ट नीट पीजी वगैरह और एफएमजी देखा था। सर इनफैक्ट एक और थैंकफुली। चीज, अमन सेठिया सर है मेडिसिन के ना जो, तो हम्म। उनके नोट्स के बाहर भी कुछ नहीं आया, बल्कि हमारे जो बगल में लाइब्रेरी वाले बोलते थे अरे इनके नोट्स कम है हाँ, बहुत, उनके नोट्स से भी, सब उनके नोट्स से ही था। इनफैक्ट वही उनकी जो बात है ना। टेबल्स दी हुई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी आई थी। राइट राइट राइट। सर इवन वही है सर्जरी कि तो ऐसा लग रहा था कि बाहर से कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, चाहे जाना हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा सर, डिफिकल्ट सबसे हल्का ज्यादा भी नहीं बाहर से लगा अगर सर। किसी में क्वेश्चन थे तो फिजियो में थे और हम्म। एफएमटी में थे, बाकी नॉर्मल था सर। फिजियो तो मैंने किया ही नहीं था ढंग से। मैंने तो वही सर मैं 2 टीचर अभी से। वैसे भी डॉक्टर महेश जी है नहीं, तो वन थिंग आई हाँ। ऑलवेज डू दिस बेसिकली। तो लाइक वन थिंग यू, दिस इज अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, बहुत हार्ट टू हार्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर जवाब देना। कि तुम्हें क्या लगता है एक चीज जो डेफिनेटली लैक कर गई एफएमजी की तरफ से, नॉट फ्रॉम योर साइड, एफएमजी की तरफ से, जो शायद इंप्रूव हो सकती थी या करनी चाहिए? सो व्हाट इज दैट? बिकॉज एवरी टाइम वी एनालाइज, वी टेंड टू कम डाउन टू सम पॉइंट्स बेसिकली, बट वो वही है कि चीजें जब तक तुम लोगों से नहीं आएगा फीडबैक, तब तक नहीं क्लियर हो पाता सर 2 चीजें दिल है। से, सर एक बोलो। ये कि जब पैथो में पता लग गया था कि टीचर लेट हो रहे हैं, तो अक्टूबर के एंड तक खत्म हो सकते थे सर पैथो और एफएमटी, हम्म। क्योंकि हमारी छुट्टी चल रही थी, बहुत टाइम था हम पे। हम हाँ, सर एक ये, और दूसरा सर कि बोलो बोलो। क्यूआरएस सर थोड़ा जल्दी हो पर सकता था सर, ये तो मैं भी बोलती सर, क्यूआरएस थोड़ा जल्दी और कराना चाहिए था थोड़ा दिल्ली जल्दी वालों सर। के लिए। क्यूआरएस एक्चुअली ये था कि मैं लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना कि आई वाज कंटिन्यू, मैं उसके पहले 1.5 महीना क्लासेस से ले रहा था, आई वाज नॉट इवन फ्री फॉर अ डे। तो उस चक्कर में डेफिनेटली, अदरवाइज आई वांटेड टू कंप्लीट क्यूआरएस बाय 25th, इवन चेन्नई का।
बट वही वो शेड्यूल्स मैनेज नहीं हो पाते, 5-6 जगह क्यूआरएस, लाइक उसी चक्कर में वो होता तो है। सर ये भी बाकी तो सर जैसे इस बार लाइक जो एक महीना पहले क्लास स्टार्ट किए थे तो उनका बीच में क्लास रोक दिया गया था हाँ कि एक जो ये भी एक महीना सर, कि एक महीना लेट स्टार्ट किए उनके लिए अगर कौन जो से बीच में सब्जेक्ट्स उन हुए थे लोग तुम्हारे ऐसे, बीच में जैसे कोई याद हो हमारा तो? हम लोग स्टार्टिंग से ही थे सर, तो हम लोग का चल रहा था, फिर बीच में ऑलमोस्ट 20-25 दिन क्लास रोक दिया गया था, 20 दिन सर अराउंड जैसे रोका था। हर बैच के बीच में 2 सब्जेक्ट्स का फर्क था, इनकी साइकेट्री और फार्मा पहले हो हम्म। गई थी, हमारी हाँ। ऑप्था पहले हो गई थी और पीडिया पहले हो गई थी। बट ये एट द एंड सर सबका कोर्स सेम डे पे खत्म हुआ। वो एक चीज हम्म। जैसे जो बाकी कोचिंग्स में है, वो कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा कि कि पहले वाला को पहले कि खत्म जो किया जाता छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो जो हम्म। जिस जिस बैच के छूटे हैं वो बाद में ही हो, पहले खत्म हम्म। करते चले। नहीं तो पहले और ज्वाइन करने सर का कोई ये मतलब ही पैथो नहीं। वाली बात भी, क्योंकि सर आपने भी पैथो देखा वाला होगा तो लास्ट। अनप्रेसिडेंटेड था बहुत ज्यादा हमारे लिए भी। तो पैथो वाला तो मैंने वही बोला था वाला, नहीं आपने एक्चुअली बोल दिया पैथो था वाला सर। जो जेन्युइन प्रॉब्लम था ना वो ये था कि इन केस अगर करवा भी देते डॉक्टर तरुण से, आई तो ऑलवेज अग्री कि उनसे करा लो, बट अगर इन केस डॉक्टर प्रीति वुड हैव अग्रीड टू कम बैक ना, और अगर किसी और इंस्टीट्यूट में डॉक्टर प्रीति की गलती से भी क्लास हो जाती, तो जो हो हल्ला मचाते बच्चे मुझे पता है। हाँ ये है बच्चे सर, ये देख लिया मैंने, नाम के बट पीछे सर बहुत ज्यादा। डॉक्टर तरुण ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब जितना भी उन्होंने किडनी वाला पोर्शन कराया था बेस्ट पढ़ाया था। सर एक चीज ये फायदा हुआ था मैं कि प्रीति मैम जो बेस्ट पढ़ाती है वो प्रीति मैम पढ़ा के गई, जो हाँ। तरुण राइट। सर बेस्ट पढ़ाते हैं वो तरुण सर बेस्ट पढ़ा के गए। वो सर मैंने आपने ये तभी तो बोला फायदा था, हुआ। मैं जनरल सर ज्यादा मतलब सर ज्यादा डेप्थ में जाते नहीं है। हाँ वो मैंने देखे वो तुम्हारा नोट अच्छा, सर के। वही वही। और आपने तो हम्म। बोला था उसी टाइम सर कि प्रीति मैम अब नहीं आ रही है, कर लो तुम लोग खुद से, अगर प्रीति मैम से पढ़ना है तो प्रीति मैम का ये वीडियो देख लो, तो उसी टाइम हम्म। हमने पढ़ लिया था उसे। सर हम तो हम्म। एफएमजी भक्त थे, जो एफएमजी यस करवा रहा था सर। वही कर रहे थे। ज्यादा तो आपका सुनता था सर। सच बात है सर, विकास सर और आपकी सुनेंगे। सही बात है यार, यही मेन होता है कि सुनो, मतलब ऊपर से सुनो और फॉलो करो, बिकॉज मेजोरिटी बच्चे जो रह गए ना, अटक गए ना, दिक्कत वही हुई जो लास्ट लास्ट में सर मुझे मैंने दिखे जो ही नहीं देखा, बिल्कुल। मैंने एक चीज देखी सर, अटके ज्यादातर वो भी हैं जो एक्स्ट्रा करने चले गए लास्ट लास्ट में। हाँ वो तो है ही, एक्स्ट्रा नहीं क्योंकि करने जाना है। कवर ही नहीं हो पाया चीजें, फिर वही हाँ। ये बात है कि मैंने वही देखा, एक तो एक्स्ट्रा करने चले गए, दूसरी बात की जो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन, तो लास्ट लास्ट में तो तुम लोगों ने भी ऑनलाइन किया था, बट बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन कर भी रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं था उन लोगों के बारे में, तो बहुत सारों के बारे में, तो जिनके स्कोर्स कम हुए थे या फिर जिनका मतलब यूजुअली 140s की रेंज में यूजुअली जितने भी है, लाइक आई एम शॉक्ड कुछ कुछ बच्चों का तो कि ये कैसे अटक गए, तो वही बात है, होपफुली। सर लास्ट शुरुआत से एंड तक सर टेस्ट को सीरियसली लेते रहो तो हो जाता है, मैंने इतना देख लिया और जो बहुत भी अच्छा जूनियर्स होता तुम्हारे है। आएंगे उनको यही बोल के भेजना, मेन तो बात है, क्योंकि आता है तो मुझे पता है डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत सारे होप्स खो जाते हैं कि क्या होगा, मेरा तो 20 ही मार्क आ रहे हैं, मेरे 10 ही मार्क आ रहे हैं, जो भी, बट वही है कि सर अच्छे वो से पढ़ने बनाए पे तो रखना बहुत क्वेश्चन तो जरूरी लग है। जाता था, जहां तक आपको एक और बार सर बताया मैंने भी एक चीज था। और देखी, एक्स्ट्रा करने से अच्छा ना आप अपने नोट्स कितनी बार रिवाइज करो, क्योंकि एट द एंड पेपर देते हुए यही याद आ रहा था यार, एक रिवीजन और मिल जाता तो मैं और अच्छा कर लेता, एक रिवीजन और मिल। ट्रू। बेसिकली ये जितना ज्यादा सर रिवीजन हो। एक्स्ट्रा के लिए टीएनडीज हैं, क्योंकि टीएनडी में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है नोट्स में, तो राइट राइट। एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं होती। सर टीएनडी करके तो नीट के सर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन लग सर जाते हैं अच्छे वाले। सर क्यूआरएस का और ईएनटी का थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता सर, वो क्योंकि पढ़ने क्यूआरएस में का नहीं और आया। ईएनटी का तो मुझे अपडेट करना था यार, ईएनटी का अपडेट हो नहीं पाया था सर क्योंकि लास्ट पढ़ने टाइम। में नहीं आ रहा था, क्यूआरएस भी ऐसा था कि हमने तो पढ़ा था वही जो था, हम्म। लेकिन ऐसा था कि बहुत राइटिंग किसका गड़बड़ है जैसे, तो उसमें होता है कि पढ़ने में नहीं आता है, बाद में ऐसा हो गया था, राइट। बहुत छोटा लास्ट फॉन्ट टाइम था। ईएनटी का एक्चुअली मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे और डॉक्टर राजीव के बीच में टसल चल रही थी, मैं बोल रहा था आप ले लो, वो बोल रहे थे तू ले ले, तो उस चक्कर में मैंने अपडेट ही नहीं किया था, मैं बोला सर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सर वो भी बट बहुत फिर पॉजिटिव सर ने, सर है उसका। हाँ हाँ।